Hello everyone, this is Abhinay Anand and welcome back to our YouTube channel Basic Concepts of Geology. We have already finished 15 questions from 2008 IIT JAM question paper. Let's see the question number 16. The question is, in hydrogeological context, a porous and impermeable earth mass is known. The mass should be porous and impermeable. We have an option aquifer, acutard, acuclude and aquifers. Now first of all, how many of you think these are the type of aquifer? These are not a type of aquifer. These are the geological formation in context of hydrogeology, or we can say that hydrogeological formations. All these four terms can be defined on the basis of three properties. That is storage, or we can say that porosity, second is permeability, and third is yield capacity of that particular formation. So let's see a table. On the basis of this table, we are going to define all these four terms. As I discussed, water storage, that is porosity, permeability of water and yield of water. And there is an example of. First is aquifer. Aquifer has a water storage, or we can say that it can store water and at the same time it can transmit water and we can yield water from aquifer. Example of aquifer is sand and gravel, or we can say any unconsolidated material, or we can say jointed or fractured rock. In case of acutard, it has a porosity and partially permeability. Because of that, it cannot yield sufficient amount of water. Example of acutard is sandy clay. Third is aquiclude. It can store water but it is impermeable, that's why it cannot yield water. Example is clay. Aquifers. It neither store nor it can transmit water because it has no porosity, no permeability, so it cannot yield water. Example is compact rocks such as granite and basalt. On this basis, our answer is aquiclude. Next question is, in an underground mine, shaft and ore body are connected by. Our option is bench, rise, adit, crosscut. So bench is basically used in open cast mining. Let's see, this is the image of open cast mining and this is bench. This and this is bench, and this length is bench width and this is bench height. So it will depend on the what kind of mine is, what kind of geological condition is. So on that basis the bench height and bench width is fixed. So it is in case of open cast mine. So bench is not our answer. This is a cross section image of a underground mine. This is a ore body and there are different terms written. तो सिंपल सा आसान में भाषा में समझते हैं हम इसको कि एक चलो अंडरग्राउंड माइन, ये ग्राउंड सरफेस हमारा, यहाँ पे कोई और डिपॉजिट है, तो हमें इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? नियर बाय हम एक वर्टिकल क्या करेंगे, यहाँ तक पहुंचने के लिए हम एक एक्सकेवेशन करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर वहां से हम यहाँ तक पहुंचेंगे, और बॉडी तक पहुंचेंगे। तो अब यहाँ से जो यहाँ तक वर्टिकल एक्सकेवेशन किया हमने, इसको क्या बोलते हैं हम? शाफ्ट। और ये अभी यही पूछ रहा है, क्वेश्चन में यही है कि जो ओर बॉडी और शाफ्ट को कनेक्ट करता है, तो इसको बोलते हैं हम, ये वाला जो पार्ट है ये क्रॉस कट। एक तो यहाँ पे किया, यहाँ से हमने एक्सट्रैक्ट करना शुरू किया, फिर हमने यहाँ बनाया, फिर यहाँ बनाया, तो दीज आर डिफरेंट लेवल्स, ये डिफरेंट लेवल है। अब इसी में क्या है कि डिफरेंट और टर्म आते हैं, जैसे देखो स्टॉप। स्टॉप इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टॉप इज एन एक्सकेवेशन इन अ माइन फ्रॉम विच ओर इज और हैज बीन एक्सट्रैक्टेड। ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अभी लास्ट ईयर जीएसआई के एग्जाम में पूछा गया था स्टॉपिंग के बारे में, तो आप इसको याद रखेंगे। और देखो डिफरेंट लेवल बता दिया। राइज क्या होता है? राइज अब लेवल से अपवर्ड की तरफ जो है, ए वर्टिकल और इंक्लाइन अंडरग्राउंड वर्क दैट हैज बीन एक्सकेवेटेड फ्रॉम द बॉटम अपवर्ड। फ्रॉम बॉटम से अपवर्ड की तरफ जाते हैं तो उसको राइज, इसलिए राइज बोलते हैं। अब ये एडिट क्या होता है? मान लो एक हिली एरिया है, हिली ट्रेन है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिपॉजिट है, तो इसको एक्सकेवेट करने के लिए यहाँ से क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल टनल बनाते हैं, एक्सकेवेशन करते हैं। तो ये वाला हॉरिजॉन्टल जो होता है उसको हम बोलते हैं एडिट। तो वही आप डेफिनेशन में देख सकते हो, एन ओपनिंग ड्रिवन हॉरिजॉन्टली इनटू द साइड ऑफ अ माउंटेन और हिली फॉर प्रोवाइडिंग एक्सेस टू अ मिनरल डिपॉजिट। तो ये हॉरिजॉन्टल वाले को एडिट बोलेंगे, वर्टिकल वाले को सॉफ्ट बोलेंगे, और जो हमें और बड़ी तक ले जाए उस सेक्शन को क्रॉस कट बोलेंगे। और फिर लेवल, डिफरेंट लेवल होते हैं, फिर राइज होता है, स्टॉप होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि आपको याद रखने हैं, काफ़ी बार यहाँ से भी क्वेश्चन रिपीट होंगे। तो हमारा आंसर हो गया दैट इज क्रॉस कट, डी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ग्लोबल ट्रंकाना बेयरिंग सीक्वेंस इंडिकेट अ शैलो मैरीन सेडिमेंटरी सक्सेशन डिपॉजिट ड्यूरिंग। ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ, पैलियोंटोलॉजी में मैं आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा उतना अच्छा नहीं है, बट एटलीस्ट उतना मैं ज़रूर बता सकता हूँ आपको जिससे आपका आंसर आ जाए।
तो मैंने यहाँ पे कुछ ऑलरेडी सर्च करके कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पे, तो वहाँ से आप पॉज करके जिनको समझ में आता है वो रीड आउट कर सकते हैं। लेकिन जो हाईलाइटेड पॉइंट है मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये ग्लोबल ट्रैंकाना क्या है, तो देखो इसका एज क्या है 89.3 टू 37.2 मिलियन ईयर, दैट मीन इट इज एक्सटिंक्ट। अब इसके डिस्ट्रीब्यूशन है, देखो ये इयोसीन में भी था, पैलियोसीन में था, क्रिटेशियस टू पैलियोसीन में था एंड क्रिटेशियस ऑफ ऑस्ट्रिया। तो ये फर्स्ट अपीयरेंस क्या हो गया इसका, क्रिटेशियस। हम एज से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ये कहाँ पे फॉल करेगा, क्रिटेशियस में। तो फर्स्ट अपीयरेंस इसका क्रिटेशियस में था। तो हमारे पास ऑप्शन में क्रिटेशियस भी है, इयोसीन भी है, जुरासिक तो नहीं होगा, ओलिगोसिन भी नहीं होगा। तो अब ये इयोसिन भी हो सकता है, क्रिटेशियस भी हो सकता है। तो अब इंपॉर्टेंट क्या है क्वेश्चन में देखते हैं, वो पूछ रहे कि सैलो मैरीन इज अ कीवर्ड। तो सैलो मैरीन अब देखते हैं कि क्रिटेशियस में या इयोसिन में। अब इन दोनों को देखते हैं कि क्या हुआ था। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। प्लैंक्टोनिक फोरामिनिफेरा लिव्ड इन द प्रोटेक जोन लेस देन द 200 मीटर डीप नियर द ओशियन सरफेस ड्यूरिंग द लेट क्रिटेशियस। अब ये ग्लोबो ट्रंकाना जो लेफ्ट वाला है ये ग्लोबो ट्रंकाना है। तो एक तो यहाँ से पता चल गया ये प्लैंक्टोनिक फोरामिनिफेरा है। अब ये इंपॉर्टेंट है, ड्यूरिंग द क्रिटेशियस टाइम कैसा इन्वायरमेंट था हमारा वो देखते हैं हम। The high sea level and warm climate of Cretaceous meant large area of the continents were covered by the warm shallow sea, providing habitat for many marine organisms. तो shallow sea यहाँ पे था क्योंकि climate warm था तो इसलिए shallow sea था। तो अब हमारे क्वेश्चन में भी है shallow marine। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर क्रिटेशियस होगा। तो एक तो ये फर्स्ट अपीयरेंस इसका ये था, तो वो इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट अपीयरेंस इसका क्रिटेशियस में था। दूसरा हमने कंफर्म किया कि सैलो मैरिन जो था किस टाइम में था, क्रिटेशियस टाइम में था, क्योंकि वार्म क्लाइमेट थे उस टाइम। तो हमारा आंसर हो गया क्रिटेशियस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड फर्स्ट लुक में आप फर्स्ट बार आप इसको देखोगे तो लगेगा बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, सेकेंड बार क्वेश्चन पढ़ते ही आपको आंसर पता चल जाएगा। अभी देखो क्या है क्वेश्चन, अ हेवी मिनरल असेंबलीज इन अ रॉक कंसिस्ट ऑफ अ राउंडेड ग्रेन ऑफ टूरमैलिन, जिरकन, रूटेल, काइनाइट एंड एस्टेरोलाइट। द प्रोवेनियंस ऑफ सच असेंबलीज। अब क्या है कि हैवी मिनरल्स दिए हुए हमें डिफरेंट डिफरेंट, और उसका प्रोवेनियंस पूछ रहा है कि क्या हो सकता है। अब सबसे पहले हैवी मिनरल्स क्या होते हैं। हैवी मिनरल्स, अगर आपने मेरे मिनरलॉजी का वीडियो देखा होगा जिसमें कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मिनरल में मैंने स्पेसिफिक ग्रेविटी को डील किया, तब मैंने बताया कि हैवी मिनरल्स क्या होते हैं। तो जिस मिनरल का स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.89 से ज़्यादा होता है, ग्रेटर देन 2.89, और यही आपको कहीं कहीं पे रेंज मिल जाएगा 2.8 से 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इस रेंज में जो स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसकी ज़्यादा होती है यहाँ से, तो उसको हम बोलते हैं हैवी मिनरल्स बोलते हैं। हैवी मिनरल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, ड्यू टू हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी वो क्या होता है, रेसिस्ट टू इरोजन और वेदरिंग होता है। तो इस वजह से वो काफ़ी लंबे टाइम तक सर्वाइव करता है और काफ़ी दूर तक ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है। तो इसलिए वो प्रोवेनेंस स्टडी में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो अभी ये सारे जो मिनरल्स हैं, काइनाइट, एस्ट्रोलाइट, इनकी हैबिट कैसे होती है, जो हम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मिनरल अगेन मैं बोलूंगा, जो कि मिनरलॉजी सीरीज में मैंने कुछ ही वीडियो डाले हैं अभी तक, लेकिन उससे काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं इसमें, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसे देखोगे तो 20 मिनट्स के एपिसोड है, अभी मैंने ज़्यादा डाले भी नहीं। तो अगर मैं अपने एपिसोड को अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पेपर ये प्रिपेयर किया है, आप एक बार देखना उसे, फिर आपको पता चल जाएगा वो कितना आसान है और कितना इम्पोर्टेंट है। तो अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप जाके वो सारे एपिसोड देखो, जो भी मैं डालता हूँ वीडियो वो जाके देखा करो, उससे बहुत क्वेश्चन आपके सॉल्व होने वाले हैं। तो हैबिट इसका क्या होता है, काइनाइट और एस्ट्रोलाइट का ब्लेडेड होता है। अब ब्लेडेड कैसे दिखता है, इस तरह के कुछ दिखेंगे हमें हैबिट्स जो होते हैं, एसिकुलर, ब्लेडेड, इनके कुछ होते हैं। तो क्वेश्चन में क्या है कि राउंडेड ग्रेन्स हैं, इट मीन्स इट दिस मिनरल आर ट्रांसपोर्टेड। तो एक पॉइंट तो हमारा ये हो गया कि ये मिनरल ट्रांसपोर्टेड है। ओके, अब दूसरा पॉइंट देखो क्या है। अब मिनरल असेंबलीज पे ध्यान करो, तो ये जो काइनाइट एंड एस्ट्रोलाइट है, ये क्या है, ये है मेटामॉर्फिक मिनरल्स। ये मेटामॉर्फिक रॉक्स में मिलते हैं। तो हमारे ऑप्शन में क्या है, देखो आप इग्नियस रॉक्स भी हैं, तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं होने वाला। अब बात करेंगे हम हाइड्रोथर्मल डिपॉजिट और रिवर्स सेडिमेंट्री डिपॉजिट के बारे में। तो अब हमारा पहला ऑप्शन है हाइड्रोथर्मल डिपॉजिट। जो हाइड्रोथर्मल डिपॉजिट होता है वो क्या होता है, एपिजेनेटिक होता है। एपिजेनेटिक मीन्स कि it will form after the formation of enclosing rock, so it is epigenetic। और दूसरा पॉइंट हाइड्रोथर्मल डिपॉजिट में होता है कि it is formed by the hydrothermal solution or fluid, स्पेसिफिकली रेसिडुअल फ्लूइड। जो रेसिडुअल फ्लूइड प्राइमरी मिनरल्स के डिपॉजिट हो जाने के बाद मैग्मा के बचते हैं, उसी से वो फर्दर डिपॉजिट होता है।
तो इस केस में भी क्या होगा, इस तरह के काइनाइट और स्टेरोलाइट आपको नहीं मिलेंगे। तो हमारा हाइड्रोथर्मल डिपॉजिट भी ये नहीं है, क्योंकि एक तरह से देखें तो ये भी प्राइमरी मैग्मा जो है उसी से फ्लूइड जो बचता है फिर उसी से डिपॉजिट होता है। तो उस केस में भी मेटामॉर्फिक मिनरल्स मिलना पॉसिबल नहीं है और इस तरह के राउंडेड ग्रेन्स मिलना मुश्किल है। अब रिवर्क सेडिमेंट्री रॉक में क्या होता है, रिवर्क में क्या है, सेडिमेंट्री रॉक क्या हो गया, सेडिमेंट्री में आपका मेटामॉर्फिक भी आएगा, इग्नियस भी आएगा। इसके अलावा क्या है, ये ट्रांसपोर्टेड है। रिवर्क मतलब एक बार डिपॉजिट हो गया और दूसरी बार फिर से उसका इरोजन हुआ, डिपोजिशन हुआ। तो एक बार तो ट्रांसपोर्ट होकर डिपॉजिट हुआ ही, दोबारा से हुआ वो। तो इस केस में हमें राउंडेड शेप भी मिलेंगे। और जनरली हैवी मिनरल्स जो इंडिया में मिलते हैं ना, क्या होते हैं, प्लेसर डिपॉजिट होते हैं। बीच प्लेसर डिपॉजिट आपने पढ़ा होगा, जिसमें हैवी मिनरल्स मिलते हैं। तो हमारा ऑप्शन होगा यहाँ से रिवर्क सेडिमेंट्री रॉक। अब नेक्स्ट चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगेन दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन फ्रॉम क्रिस्टलोग्राफी। अभी देखो क्रिस्टलोग्राफी ना बहुत इजी है, उसके लिए भी मैं वीडियोस डाल रहा हूँ, आप उसे देखते रहो। ये सब क्वेश्चन आपको दोबारा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आराम से एक बार ही देखते बन जाएगा। क्रिस्टलोग्राफी क्या है, दिमाग लगाने का नहीं, बस बेसिक चीजों को समझने का है। उसके बाद कुछ ही डेटा है उसके, उसको आप याद कर लो तो एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होने वाला है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या हमारा। द नॉर्मल क्लास ऑफ ट्राइक्लिनिक सिस्टम इज, तो क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल है और हर क्रिस्टल सिस्टम के क्लास होते हैं, तो ये उसके एग्जाम्पल हैं। तो पहले देखते हैं हम कि बेराइट क्या है। बेराइट जो है ऑर्थोरम्बिक सिस्टम में आता है। जिप्सम जो है मोनोक्लिनिक का है। एक्जिनाइट इज ट्राइक्लिनिक। अब ट्राइक्लिनिक के सिमेट्री क्या होते हैं, इसमें प्लेन कोई नहीं होता, ना एक्सिस होता है, ये सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है, जिसको कि मैंने अपने क्रिस्टलोग्राफी में बताया था, आई से लिखते हैं या फिर बार आई से डिनोट करते हैं। और इसके एग्जांपल क्या है ट्राइक्लिनिक मिनरल्स के, एक्जिनाइट है, एल्बाइट है, नॉर्थाइट है, माइक्रोक्लिन है, काइनाइट है। तो ये एग्जाम्पल याद रखेंगे। और जो कैल्साइट है वो होता है हमारा हेक्सागोनल। इसी के साथ हमारा आज का 5 क्वेश्चन खत्म होता है। हम कल फिर करेंगे अगले 5 क्वेश्चन। तो आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें और लास्ट तक वीडियो देखा करें आप मेरा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, प्लीज कम बैक अगेन। सो सी यू टुमारो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।